Good morning, everyone. Respected dignitaries, teachers, and my fellow mates, I welcome you all to the B.G. Varghese lecture series. Bubli George Varghese was a senior journalist and one of the distinguished stalwart of media industry. In his honor, the department regularly holds B.G. Varghese lecture series. Today's topic for the lecture is Role of Media in Democracy in backdrop of 2019's election. Now I request the dignitaries to do the lamp lighting ceremony. Dr. Amrish Saxena Sir, HOD DME Media School Professor Dr. Susmita Bala Ma'am, and today's chief guest Mr. Rajesh Badal Sir. Mr. Rajesh Badal Sir is a veteran journalist who has been in the field of journalism for more than 42 years. He is from the first generation people of TV journalism. He has worked in all type of journalism, whether it's print, radio, television or digital. More than 100 documentaries, more than 5,000 articles, more than 50 biopics. He had been editor in Aaj Tak, managing director in The Voice of India, executive director in Rajya Sabha TV for 8 years. The first anchor in Madhya Pradesh, India's first TV travel log covering the distance from Arunachal Pradesh to Rameshwaram, having 40 years of experience in India's science journalism. He has been the jury member of various national and international film documentary festivals. He has been associated with various renowned names like Navbharat Times, Dainik Jagran, Nai Duniya, Lokmat Samachar, and to name a few in the field of print journalism. Sir has also contributed on various social media platforms. Sir has been honored with various awards and also a Lifetime Achievement Award for contributing in the field of national and regional journalism. Now I request Dr. Amrish Saxena Sir to felicitate Sir. Now I request HOD DME Media School Professor Dr. Susmita Bala Ma'am to address the gathering. Good morning, everybody. Let me introduce to you Mr. Rajesh Badal, veteran journalist, author, and persuasive political analyst. We have been watching him on TV screen. We kept reading his articles in newspapers. I welcome you, sir, at DME. Mr. Badal is here to deliver the third special lecture series as a part of B.G. Varghese. On behalf of DME Media School, I welcome Rajesh Badal sir. B.G. lecture series has been instituted in the name of the distinguished journalist B.G. Varghese, who is always remembered for making a deep impact on Indian journalism. DME Media School organizes one special lecture every month as a part of B.G. Varghese lecture series. You all would remember Mr. Archana Datta, former DG of AIR News and DD News, and Mr. Paranjay Guwahati Kurta, senior journalist. In 2018, we were privileged to listen Mr. K.G. Suresh, DG IIMC, Mr. M.K. Singh, senior journalist, Mr. Prashant Tandon, senior journalist, Mr. Ujjwal Chaudhary,
senior media educator. We also got the opportunity to listen to Mr. Anshuman Tiwari, senior journalist. So today we would further get an insight in contemporary journalist Mr. Rajesh Badal. So, a topic of role of media in democracy in the backdrop of 2019 elections. We are grateful, sir, to accepting our request and speak on such a pertinent subject. I am sure that the students and the teachers present here will be immensely benefited by his thoughts. I once again, Mr. Rajesh Badal at DME. Thank you. Thank you, ma'am. Now I request Dean DME Media School, Dr. Amrish Saxena, sir, to address the gathering. Dear students and faculty members and chief guest of today's lecture series, Mr. Rajesh Badal. We have had a lot of eminent people speaking as part of BG Varghese lecture series. And most of the senior people who are working in journalism and who have made very immense contribution in different aspects of journalism, they have been coming here at DME and talking to you people on different aspects of journalism. So in that series we have Rajesh Badalji with us. The most distinct thing about him is that he is a combination of regional journalism and national journalism. Also a combination of the Hindi journalism and obviously covering from print, radio, television to digital, all that experience he has. And he has been heading different channels in the capacity wherein he could take the decision and he could decide the direction of news. But then in today's time, we find the way the news is changing, the definition of news is changing. And then the way the functioning of newspapers and particularly news channels is changing. A lot of questions are being raised, particularly last 4 or 5 years. A lot of changes we witness have happened in India as well as in other parts of the world, tracing from the what happened in the US in the last presidential election and the way the election happened, the way the election was tackled by Trump, and then his tussle with the news channels and the whole concept of fake news that was mooted. And then on the digital media we look at the misinformation campaign which is happening right from Google to Facebook. They are into fact checking and all. The Election Commission is also doing its bit wherein it has issued certain directions. In today's newspapers only I was reading a news wherein the Election Commission has initiated an action on Facebook for having such content which should not have been there, which are not approved. So all such things are happening, and today only I was reading news about, since yesterday only we completed 30 years of internet, World Wide Web. So the founder of the World Wide Web, he had issued an address wherein he has pointed out that the world has changed because of internet, but at the same time this platform is also being used by the scammers, by the people who are spreading hate, who are spreading violence. So he has given a caution on this, that this platform should not be used by such people, and it should be used for the betterment of the mankind. So technologically we have advanced. There's an expansion of media. The digital platform has given us immense opportunities for the journalists to take up the issues which are related to the common people, and common people themselves can directly come to this platform and can talk about their problem, their miseries that they face. So it's a completely changed environment as far as the media is concerned. Now talking about India, since we have entered into the election phase, and elections are an inseparable thing, or the most important thing on which the democracy rests.
So, for the success of democracy, it is necessary that the elections are held in an atmosphere wherein there is no enmity, no hatred, and then the media is also responsible to spread that kind of content wherein elections are held in a fair and in a level playing atmosphere. So media's role enhances in such an atmosphere when the elections are happening in the country. So that is how we have requested Rajesh Badalji to talk about this. Because he has been a political analyst and still every week his columns appear in different Hindi newspapers on this issue on election and the democracy. So focusing on this aspect, the role of media in a democratic setup and in the backdrop of this 2019 elections that we are facing. So he will be talking about this, and obviously he will be throwing light on many such areas which normally we would not have thought of. And then it is for you people, for the students, to raise pertinent questions to him so that we can have more clarity on the issues that we are confronting and we will be confronting in another 2 months' time in India. Thank you all. Thank you so much, sir. Now I request our chief guest to kindly share his words of wisdom with us. Thanks, Sushmita ji, Dr. Saxena, for calling me in this great lecture series in your respected organization. And dear students, आप सब ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स हैं, मेरा ख्याल है, अगर मैं ठीक समझ रहा हूं तो। एक बात से शुरू करना चाहता हूं, जब आपने इस बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट में जब एडमिशन लिया मीडिया कोर्स में, तो क्या वाकई आप जर्नलिस्ट बनना चाहते थे जिस दिन एडमिशन लिया? कितने लोग सिर्फ जर्नलिस्ट बनना चाहते थे, जरा हाथ उठाएंगे? बहुत कम लोग हैं जो जर्नलिस्ट बनना चाहते थे। बाकी लोग जिन्होंने हाथ नहीं उठाया है वो क्या बनना चाहते थे मीडिया में? कैन यू टेल? कोई भी एक खड़ा होके बता सकता है? मीडिया का आपने सिलेक्शन क्यों किया? आपने क्यों मीडिया कोर्स ज्वाइन किया है? कोई भी बता सकता है मुझे? आप अगर जर्नलिस्ट नहीं बनना चाहते, एंकर नहीं बनना चाहते, रिपोर्टिंग नहीं करना चाहते, तो क्या मीडिया में करना चाहते हैं? किसी के पास कोई उत्तर है? मुझे लगता है कि शायद इसका कारण एक ये है कि आप लोगों ने ये सोचा होगा कि जैसे बाकी कोर्सेज हमको होते हैं, मिलते हैं, इसके बाद भी एक कोई कैंपस सिलेक्शन होगा, उसमें कोई चैनल आएगा, कोई अखबार आएगा, कोई रेडियो आएगा और आपको सेलेक्ट करेगा। मेरा ख्याल है ये सबके मन में बात है। कितने लोगों के मन में ये बात है? हाथ उठाएंगे? कम लोग तय कर पा रहे हैं कि उन्हें दरअसल करना क्या है। सबसे पहले मैं आपको बधाई देना चाहता हूं कि आपने दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे अच्छा नोबेल प्रोफेशन चुनने का फैसला किया है। यू हैव सिलेक्टेड फर्स्ट क्लास प्रोफेशन इन द वर्ल्ड। आप भले ही वो एक्सीडेंटल आ गए हो यहाँ पर, है ना? क्योंकि मुझे लगा तो अगर आप किसी दुर्घटना के शिकार हो गए यहाँ आ गए हैं, एक्सीडेंटल आ गए हैं, तो भी आपसे ये बहुत अच्छा फैसला हो गया है।
आई डोंट नो कितने लोगों के बच्चों के पेरेंट्स, आप लोगों के पेरेंट्स आपके इस डिसीजन से एग्री करते थे। कम लोग होंगे शायद ना, 2 लोगों के पेरेंट्स शायद एग्री करते थे, 3, 4, काफी लोग हैं। अच्छी बात है, अच्छी बात है। इसका मतलब ये है कि आप लोग कम ऐसे हैं जो जर्नलिस्ट बनना चाहते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स कहीं ज्यादा समझदार हैं, तभी तो पेरेंट्स हैं वो। एनीवे, जब मैं ये कहता हूं, मैं अपनी बात पे आऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं आप लोगों को पहले ये बता दूं कि जब मैंने आपको ये कहा है कि आपने संसार का, वर्ल्ड का सबसे नोबेल प्रोफेशन चुना है। हम इंडिया में 4th एस्टेट कहे जाते हैं, 4था खंभा डेमोक्रेसी में इसलिए कहे जाते हैं। कोई एक, आप में से कोई एक बता सकता है? सोचिए ये क्यों है ऐसा? राइट, एनीबडी एल्स? कोई और बताएगा? ठीक है, मैं समझ सकता हूं। हाँ, हम समाज में पारदर्शिता लाते हैं, हम समाज में पारदर्शिता लाते हैं। देखो, मैं इसको एक दूसरे तरीके से लेता हूं। आप लोगों के बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे जिन्होंने बीई में एडमिशन लिया होगा, कुछ फ्रेंड्स ऐसे होंगे जिन्होंने मेडिकल लाइन चुनी होगी, कुछ ऐसे होंगे जो शायद एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में या पुलिस सर्विसेज में या डिफेंस में जाना चाहते होंगे। ये प्रोफेशन सबसे अच्छा इसलिए है क्योंकि इसमें ये एक लाइफ स्टाइल है, ये एक जीवन शैली है। आपको रोज पता होता है कि आपने क्या अच्छा किया, क्या खराब किया। कोई प्रोफेशन दुनिया में ऐसा दूसरा नहीं है। आपको साल के अंत में एक मार्कशीट मिलती है, एट द एंड ऑफ द ईयर यू विल गेट अ मार्कशीट फ्रॉम दिस इंस्टीट्यूट, और उस मार्कशीट में लिखा होगा कि आपने मास मीडिया में कितने अंक हासिल किए, परसेंट इतना आया। तो जो आइए, मैं किसी प्रोफेशन को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, ये ध्यान रखिएगा, लेकिन आप लोगों ने जो फैसला किया है उसको मैं अच्छा क्यों बता रहा हूं कि अगर आपसे ये धोखे में भी फैसला हो गया है तो नाउ अपने आप पर गर्व करिए कि आपकी डेस्टिनी ने, आपकी नियति ने आपको बहुत अच्छी जगह ला दिया है। ये प्रोफेशन रोज आपको बताता है आपने अच्छा किया है, खराब किया है। एक आईएएस, एक आईपीएस, एक क्लर्क, एक शिक्षक, एक इंजीनियर, एक डॉक्टर ड्यूटी की तरह रोज करता है, मंथ एंड पर एक सैलरी पाता है और उसके बाद महीने भर फिर काम करता है। लेकिन यहाँ एक ऐसी जिंदगी का एक दरवाजा आपके लिए खुलता है जहां रोज आनंद है, रोज आप सोसाइटी के कंसर्न्स हैं, जो सरोकार हैं सोसाइटी के, उनके साथ आप जुड़ते हैं, जो नेशनल कंसर्न्स हैं, जो देश के सरोकार हैं, जो देश की जिम्मेदारियां हैं, उनके साथ आप जुड़ते हैं। तो जब आप तैयार होके इस प्रोफेशन में, जिस दिन आप रेडियो में बैठेंगे, जिस दिन आप टेलीविजन में बैठेंगे, जिस दिन आप अखबार में बैठेंगे, जिस दिन आप पब्लिक रिलेशन में जाएंगे या सोशल मीडिया में जाएंगे, डिजिटल मीडिया में जाएंगे, तो आप पाएंगे कि इस इंस्टीट्यूट से जो आपने सीखा है उसने आपकी जिंदगी कैसे बदली है। चलिए अब मैं अपनी बात शुरू करता हूं। ये अभी 10+2 में जब आप लोग आए हैं, कितने लोगों ने अभी तक जो आपका कोर्स है उसको इंटरेस्ट आ रहा है इस जर्नलिज्म में? ऑलमोस्ट 50% है। जिनको नहीं मजा आ रहा है उसका कारण क्या है, बता सकता है कोई? क्या प्रॉब्लम आ रही है? अच्छा चलिए मैं अपने सवाल को दूसरे तरीके से पूछता हूं। आपको पता है हमारा देश 1947 में आजाद हुआ। उससे पहले हमारी हालत क्या थी? हम गुलाम थे अंग्रेजों के,
और उसके बाद हमने अपना देश का ये सिस्टम बनाया। कब कोई बता सकता है, किसी को याद है कि इलेक्शन कब हुआ था? पहला इलेक्शन, फर्स्ट इलेक्शन ऑफ द कंट्री 19 नो 51 में इलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ था और 52 तक चला। 4 महीने लगे थे। अब 51 में क्यों बना? हम तो आजाद हो गए थे 47 में। देखिए, जब कोई भी आजाद मुल्क है जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज को समझता है, जो अपने देश में डेमोक्रेसी मजबूत करना चाहता है, प्रजातंत्र को मजबूत करना चाहता है, तो उसको कैसे, कौन गवर्न करता है उस सिस्टम को? उसको एक इलेक्शन कमीशन। और जब 47 में अंग्रेज गए यहां से, तो आपको पता है कि वो किस तरह से हमको छोड़ के गए थे। हमारे पास कोई आम आदमी के लिए, कॉमन मैन के लिए पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं थे, हॉस्पिटल्स नहीं थे, इरिगेशन नहीं था, एग्रीकल्चर नहीं था, ह्यूमन राइट्स की कोई बात नहीं करता था, अत्याचार तमाम होते थे, पढ़ने की फैसिलिटीज नहीं थी। ऐसे हालत में वो हमको छोड़ के गए। तो 47 में जो गवर्नमेंट बनी थी पहली, बता सकते हैं कौन सी गवर्नमेंट थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। 47 में कोई चुनाव आयोग था ही नहीं। देश को चलाने के लिए एक नेशनल गवर्नमेंट आई थी जिसके मुखिया थे प्राइम मिनिस्टर नेहरू। 12 लोगों का मंत्रिमंडल जो था, उसमें आधे लोग दूसरे थे जो कांग्रेस के नहीं थे। लेकिन उन सब लोगों ने मिलके 51 में 1951 में इलेक्शन कमीशन बनाया। और ये इलेक्शन कमीशन का जो प्रोविजन था वो कहां था? कोई बता सकता है? देखो, 1946 में, यानी 47 की जो आजादी हुई, आजादी से 1 साल पहले देश भर के हर फील्ड के लोगों की एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, संविधान सभा जिसको बोलते हैं। सुना है आप लोगों ने कभी? कितने लोगों ने सुना है? वेरी गुड। इस संविधान सभा ने क्या किया था, कोई मुझे बता सकता है? देखिए, सर, आने वाले कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कैसे किया जाए उस पर विचार हो रही थी। वेरी गुड। हाँ, बताइए। आने वाले कॉन्स्टिट्यूशन को कैसे फ्रेम किया जाए उस पर विचार हो रही थी कि हम क्या क्या ला सकते हैं, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, भीमराव अम्बेडकर जी ने उसे लाभ में संशोधित करने का सोचा, तो दिक्कतें आ रही थी। उसके लिए वो जो कहते हैं ना, प्रिपरेशन हो करना, वो एक प्रोसेस हो रही थी उस पर। और फिर 48 में कॉन्स्टिट्यूशन गया, 49 में लागू हुआ, 50 आया, ये सब चीजें हो रही थी। देखो, जब देश आजाद नहीं हुआ था तो सारे लोग, सारे तरह के पॉलिटिकल थॉट्स वाले लोग, सारे तरह के सोसाइटी के लोग, सारे धर्मों के लोग, माइनॉरिटी के हों, मेजॉरिटी के हों, अमीर हो, गरीब हो, सब लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। अब हमारी गुलामी तो सैकड़ों साल से चली आ रही थी, हम चलाने के लायक थे नहीं। ये देश चलेगा कैसे? जब आप अपने घर का ड्राइंग रूम सेट करते हैं तो देखते हैं ये कॉर्नर है, ये सोफे के लिए अच्छा है, यहां पर एक लाइट का लैंप होना चाहिए, यहां पर दीवार पर एक पेंटिंग होनी चाहिए। ये कौन तय करता है? आप तय करते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इस ऑडिटोरियम में कहां चेयर ठीक लगेगी, कहां पर डायस अच्छा होगा, कहां पर स्पीकर बेहतर लगेगा बोलते हुए। तो यही काम देश के उन तमाम लोगों ने किया जिन्होंने देश को आजाद होते देखा। उन्हें यह तय करना था कि अब ये जो देश है, 40 करोड़ 35-40 करोड़ की आबादी, उस आज तो आप
130 करोड़ के पहुंच गए हैं। उस समय 35-40 करोड़ की आबादी थी। तो 40 करोड़ लोगों को कैसे एक सिस्टम में ढालना है, और वो सिस्टम बनाने के लिए कि कुछ नियम होते हैं। आपके पेरेंट्स कभी घर में कहते होंगे कि सुबह जल्दी उठा करो, और फिर आप लोग इस कान से सुन के उस कान से निकाल देते होंगे। आजकल सबसे ज्यादा सुनने को यही मिलता है कि सुबह जल्दी, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज। ये होता है ना, जल्दी उठा करो, टाइम पे खाना खाया करो, मोबाइल कम इस्तेमाल करो, कुछ हम लोगों से भी डायलॉग करो, पेरेंट्स से भी डायलॉग करो। ये घर घर की बात है। तो ये एक बेसिक रूल्स होते हैं जो एक घर को चलाने के लिए हम लोग बनाते हैं। इसी तरह से देश को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ये एक कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेम 1946 से उन्होंने काम शुरू किया। दे स्टार्टेड इन 1946 एंड दे कंप्लीटेड दिस 1950 में। 26 जनवरी से हमारे पास वो एक किताब थी, हमारी वो गीता थी, हमारी वो ब्लू बुक थी, जिसमें ये लिखा था कि हम कैसे जाएंगे। लोकसभा और विधानसभाओं का फर्क कोई बता सकता है आप लोगों में से? एरिया से मतलब नोएडा? हाँ बताइए। दिल्ली का स्टेट है, दिल्ली की अलग विधानसभा होती है, और जो उसका लोकसभा का होता है वो राज्य का होता है। अलग अलग राज्य के जो प्रतिनिधि हैं वो चुनकर लोकसभा में आते हैं। वो तो राज्यसभा में होता है शायद। नहीं सर, राज्यसभा के मेंबर्स अलग चुने जाते हैं। हाँ अच्छा, आपके कहने का मतलब डायरेक्ट इलेक्शन लोकसभा के लिए होता है, राज्यसभा के लिए? लोकसभा के। हाँ, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि जो होते हैं वो चुन के आते हैं, इसलिए उसको अपर हाउस कहते हैं। तो जब ये लोकसभा के लिए ये तय हुआ कि करीब करीब 500 से ज्यादा सीटें, 528 या जो भी थी उस समय या कम थी शायद, ये सीटें इनके लिए चुनाव होंगे। पहले चुनाव में 17 करोड़ लोग मतदाता थे, आज 90 करोड़ हो रहे हैं। इस बार जब आप 2019 में आ रहे हैं तो बात मैं ये कर रहा था कि आप में से कितने लोग समझते हैं कि डेमोक्रेसी है क्या? इसको जो हम चुनाव एक हर साल 5 साल बाद एक चुनाव आते हैं, मैं 2-3 नाम लेता हूं, मैं अगर कोई मुझे समझा सके तो अच्छी बात होगी। एक डेमोक्रेसी, दूसरा आइडियोलॉजी, विचारधारा, और तीसरा हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, संवैधानिक संस्थाएं। ये 3 चीजें मैं पूछ रहा हूं आपसे, कोई एक्सप्लेन कर सकता है? Democracy is for the people, to the people, by the people. Anything which is democratic is for the people. आइडियोलॉजी, विचारधारा जो कि मतलब अलग अलग लोगों की होती है, जिसके वो अलग अलग वर्क करते हैं। जैसे कि कांग्रेस की विचारधारा अलग थी, वो अलग लोगों पे काम कर रही थी, अलग रूल्स के साथ काम कर रही थी, उसकी आइडियोलॉजी अलग थी। मगर जो बीजेपी बनी उसकी आइडियोलॉजी अलग थी। मतलब जो पार्टीज हैं उन सबकी अलग अलग आइडियोलॉजी होती है, इसलिए न्यू पार्टीज फॉर्म होती है। सर अगर आइडियोलॉजी की बात करें तो जैसे मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी होती है, बीजेपी के अलग आइडियोलॉजी है, कांग्रेस की अलग आइडियोलॉजी है। तो आइडियोलॉजी पार्टी की विचारधारा को प्रस्तुत करता है कि वो पार्टी क्या चाहती है और लोगों में क्या, समाज में क्या बदलाव ला सकती है, क्या इम्प्लीमेंट कर सकती है हमारे लिए। और डेमोक्रेसी हम लोग सुनते हैं अक्सर कि ये वामपंथी है, ये दक्षिणपंथी है, ये राइट विंग है, ये लेफ्ट विंग है। ये क्या आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं? यस सर, देखा जाए तो आइडियोलॉजी को ही रिप्रेजेंट करते हैं कि हाँ वो किस विचारधारा पे काम करते हैं। जैसे एक मार्क्सिस्ट में भी 2 प्रकार होते हैं, जो गरीबों के लिए सोचते हैं और एक अमीरों के लिए सोचते हैं। तो मार्क्सिस्ट में भी 2 विचारधारा है, उनके भी 2 आइडियोलॉजी है। तो ऐसे हम बता सकते हैं कि पार्टी की एक प्रॉपर आइडियोलॉजी होती है, उसके अंदर सब आइडियोलॉजीज भी होते हैं। ये चीज मैं कहना चाहता हूँ। और भी कोई इसमें जोड़ना चाहता है? देखिए, इंसान ने इस देश को चलाने के लिए, सिस्टम को चलाने के लिए कुछ तरीके ढूंढे और अलग अलग देशों में ढूंढे गए। कुछ लोग वामपंथी लेफ्ट के आधार पर विचार चलाते हैं, वामपंथी विचारधारा से। मोटे तौर पर मैं आज वो सब, क्योंकि अभी आगे मुझे बहुत सारी बात करनी है, लेकिन जो आमतौर पर
समाज में गरीब और मजदूर तबके का प्रतिनिधित्व करती है, रिप्रेजेंटेशन है उसका, उनके हितों की बात करती है। दक्षिणपंथी वो जो अपने परंपरागत मूल्यों पर टिके रहते हैं, देश की जड़ें जहां से निकल के आई हैं उन जड़ों की बात करते हैं, राष्ट्रवाद की बात करते हैं। समाजवाद आपने सुना है? किसी ने समाजवाद का नाम नहीं लिया। समाजवादी वो हैं जो पूरे समाज में, अगर आप सब लोग ये मान लीजिए बैठे हुए हैं 100 लोग हैं, तो 100 लोगों के समाज को एक साथ, ना कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा, सबकी आर्थिक स्थिति एक जैसी होगी, वो लोग समाजवाद की बात करते हैं। हमारे यहाँ की जो पार्टियां हैं वो इसी तरह से आगे पीछे बनती हैं, काम करती हैं, जिनका जिसकी तरफ झुकाव होता है उसके आधार पर उसकी पहचान बनती है। कभी आइडियोलॉजी, और उस पर मैं आऊंगा जब अगली बार, तो आपको और विस्तार से बताऊंगा। लेकिन एक अगर प्रजातंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो उसकी अच्छाई क्या है? सर वो सबों को समानता का हक देती है, किसी के साथ कुछ गलत नहीं होने देती है। हमें अपने विचारों को प्रस्तुत करने का पूरी हक है, लेकिन कुछ दायरे में, और हर कोई यहाँ पे एक आजाद नागरिक के तौर पे जी सकता है। डेमोक्रेसी ये चीज बताती है। जैसे अगर मैं बात करूँ, पहले जब राजा महाराजा की शासन होती थी तो एक राजा का ही चलता था। अगर कोई प्रजा सही है और वो सही बोल रहा है, राजा को लगता है वो गलत बोल रहा है, तो उसकी नहीं चलती थी। तो हमें डेमोक्रेसी बेसिकली हमारे जो मूल अधिकार है उसे लेने का हक प्रदान करता है। बात आपकी काफी सच है, लेकिन मैं उसको थोड़ा सा और इसको समझना चाहूंगा। कोई और आप लोगों ने सोचते हैं कुछ इस बारे में कभी? आपके अपने इलाके में चुनाव होते हैं, एमएलए आते हैं, एमपीज आते हैं, किसको वोट देना है, क्यों वोट देना है, कुछ तो सोचते होंगे ना? देखिए, भारत, इंडिया जो है वो दुनिया में अकेला एक ऐसा देश है, ऐसा अकेला मुल्क है जिसमें इतनी भाषाएं हैं, इतने मजहब हैं, इतने रीति रिवाज हैं। हर राज्य की अपना कैरेक्टर है। दुनिया में किसी देश में इतनी विविधता नहीं है। लेकिन अगर आप संविधान की नाम की उस गीता के आधार पर अगर 70 साल से चले आ रहे हैं और आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हम सब मिलकर उसको सलाम करते हैं। आप देखिए, पाकिस्तान में ये क्यों नहीं हो पा रहा है? किसी का कोई पढ़ता है पाकिस्तान के बारे में खबरें? बताइए। Not a very democratic system. When the army came to power, they have destabilized all the institutions and the business model. The Pakistan is one of the reasons that, and again, second reason is Bangladesh and when East and West Pakistan. So the financial condition is not right, and the power of army in that country, influence of army in that country is very big. And also they do not have a very secular thinking like India. Secularism in that country does not exist, and extremism and basically Pakistan was formed on Islam. That was the general argument when he voted. He gave the condition he gave 40% minority Muslims or make Pakistan. Basically the country was formed on the basis of one religion cannot be united on different Islam. काफी हद तक आपकी बात सच है, लेकिन ये बात सही है कि जब देश का बंटवारा हुआ था और पाकिस्तान बना था, तो जिस आधार पे बना था, जिस बेस पे बना था, जिस ग्राउंड पे बना था, वो मजहब का आधार था। और उस आधार पर शुरुआत तो उन्होंने ठीक की थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही उस देश में फौज ने, आर्मी ने कब्जा किया, तो सारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, सिंबल्स जो हैं वो टूट गए। बताइए सर, शायद पाकिस्तान की जो बंटवारा हुई थी, मोहम्मद अली जिन्ना भी प्रेसिडेंट बनना चाहते थे, शायद इसलिए ना हुआ था क्योंकि वो भी बनना चाहते थे और भारत से भी। तो ये भी कोई सॉल्यूशन निकाला गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा कि चलो बंटवारा भी कर देते हैं, मजहब की भी बात आ जाएगी और वो वहाँ के प्रेसिडेंट बनेंगे। ऐसा मुझे लगता है। क्या मैं सही? स्टूडेंट, आप बाकी लोग भी मुझे लगता है कि कुछ थोड़ा सा पार्टिसिपेट करें इसमें।
आप लोग कुछ सोचते हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि आज आप इस प्रोफेशन में हैं तो कल आपको ये सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा। आपको इस देश को चलाने वाली एजेंसी बनना पड़ेगा। इस देश के लोकतंत्र में जो जिम्मेदार लोग हैं उन पर निगरानी रखने वाला बनना है। तो आप लोगों को इतना गंभीर होना पड़ेगा, है ना। इतना मिनिमम नॉलेज आपको होना चाहिए कि आप कम से कम हमारे किसी डेमोक्रेटिक सिस्टम के किसी नेता के, किसी मंत्री के, किसी विधायक के, किसी सांसद के कान पकड़ सके, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पकड़ सके और उनसे जवाब मांग सके। ये अंतर है। फौज या हमारे यहाँ जैसे राजा होते थे, फ्यूडल्स, सामंत, मैं जो कर रहा हूं वो जिस आधार पर बोलते थे, मैं खुदा ने मुझको भेजा है हुकूमत के लिए, मैं समझता हूं अवाम की जरूरत क्या है। तो वो भाव है अहम भाव, मैं राजा हूं। नहीं, लोकतंत्र में हम सब उस यज्ञ में पार्टिसिपेट करते हैं। लेनिन का एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। एक बार ये हुआ कि डेमोक्रेसी आई जब, तो उन्होंने कहा कि जो ये प्रजातंत्र का महल है, उनका अपना सारा महल सबके लिए खोल दो। तो जो उनके अधिकारी थे, जो ब्यूरोक्रेट्स थे, वो आए। उनका कि सर ये जो पब्लिक तो घुसी आ रही है, भीड़ चली आ रही है, भीड़ की भीड़, और ये हमारे दीवारों को गंदा कर रही है, थूक रही है, पान थूक रही है, कीचड़ पर चलते जा रही है, कालीन गंदे हो रहे हैं, तो ये तो बंद करना चाहिए। लेनिन ने कहा कि ये महल, ये प्रजातंत्र की इमारत, ये इन्हीं लोगों ने रखी है। आज उन्हें चलना नहीं आता, आज वो कालीन गंदा कर रहे हैं, लेकिन कल वो सीखेंगे, तो आप उनके लिए बंद नहीं कर सकते। 47 में हमने जो शुरुआत की, हमारे लोकतंत्र की नींव इसीलिए हर चुनाव दर चुनाव मजबूत होती गई। कहते हैं जिंदा लोगों के कब्रिस्तान से एक सब्जी मंडी बेहतर है। बात समझ में आई किसी की? जिंदा लोगों के कब्रिस्तान से एक सब्जी मंडी बेहतर है। इसीलिए कि आपको ये आजादी है कि अपने विचार आप रख सकते हैं। ये बात जरूर है कि कभी कभी लोकतंत्र में ये होता है कि हम स्वतंत्रता और स्वच्छंदता में फर्क नहीं कर पाते, और अब आजादी का मतलब हम गलत लगाते हैं। दुनिया में, वर्ल्ड में कहीं भी कोई दूसरा देश ऐसा नहीं है जो 90 करोड़ मतदाताओं को अधिकार देता हो कि वो अपनी पार्टियां चुने। आप बताइए, कोई दूसरा देश है? नहीं है। आप सिर्फ 2 बड़े देशों के नाम आपके ज़हन में आ रहे होंगे, चाइना और अमेरिका। अमेरिका में 90 करोड़ मतदाता नहीं है। चाइना में एक सिंगल पार्टी सिस्टम है। तो जो रियल डेमोक्रेसी है वो हमारे यहाँ है, और आपको इस बात पर प्राउड और गर्व होना चाहिए। कोई बता सकता है कि हमारी जड़ें हमारे यहाँ डेमोक्रेसी की कितनी पुरानी हैं? आज जो इलेक्शन हो रहे हैं, 1500 साल पहले वैशाली का नाम किसी ने सुना है? कितने लोगों ने सुना है? क्या है वैशाली? हाँ, उसका क्या उसके बारे में जानकारी है आपको? वैशाली में दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र का नमूना मिलता है। 1500 साल पहले पार्लियामेंट वहां होती थी जैसे हमारी आज पार्लियामेंट है। 3000 के आसपास मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते थे, और आज की पार्लियामेंट में जिस तरह से स्टैंडिंग कमेटीज, आपने पढ़ा है पार्लियामेंट के बारे में? थोड़ा बहुत पढ़िए। अलग अलग विषयों पर कमेटीज होती हैं, समितियां होती हैं, और वो समितियां देश के, राज्य के हित के बारे में सोचती हैं। और सोचिए, हमारी जमीन कितनी पुरानी है, हमारी रूट्स कितनी पुरानी है कि हम 1500 साल पहले भी ये बात सोचते थे। तो हमको अंग्रेजों के जाने के बाद इसलिए मुश्किल नहीं है। बेसिक जो
डेमोक्रेसी और इलेक्शन का रिश्ता मैंने आपको बताया। अब मीडिया हम लोग कहां जुड़ते हैं, कैसे आते हैं इसमें? क्या आज जो चैनल्स आ रहे हैं या जो अखबार आप पढ़ते हैं? कितने लोग पढ़ते हैं अखबार रोज? बहुत कम लोग पढ़ते हैं। यानी आप मोबाइल पर ऑनलाइन भी आप कई बार पढ़ते होंगे ना, खबरें पढ़ते हैं? कितने लोग रोज खबरें पढ़ते हैं? थोड़ी सी संख्या कम है। आपको ये संख्या बढ़ाइए। दुनिया में क्या घट रहा है आपको पता होना चाहिए, है ना? अगर आप रोज अपने आप को इन खबरों से, दुनिया से जोड़ के नहीं रखेंगे तो आप वक्त की रफ्तार के साथ कंधे से कंधा मिला के चल नहीं पाएंगे। आपको पता है चैनल्स, टेलीविजन चैनल्स कितने लोग देखते हैं? न्यूज चैनल्स कैसे लग रहे हैं आजकल? एक कोई सब मैं सुनूंगा, सबको मैं बात करते इसलिए कि हाँ बताइए। गुड। और कोई? पेड न्यूज आजकल ज्यादा दिखते हैं। पेड न्यूज ज्यादा दिखते हैं। ये कैसे पता चलता है कि पेड न्यूज? सर किसी भी एडवर्टाइजमेंट को न्यूज के संदर्भ में दिखाना पेड न्यूज है। अगर हम मीडिया वाले तो हमें बताया जाता है कि पेड न्यूज कैसे जा रहे हैं। अगर नॉर्मल व्यक्ति से देखें तो कई बार वो जनरली नहीं पहचान पाता कि वो पेड न्यूज है, बट हमें पता चल जाता है कि हमने पढ़ा है। अगर आप कुछ एडवर्टाइजमेंट की बात करें तो कई बार लगता है सर, अभी मैं एक्सप्लेन साइड नहीं कर पा रहा हूँ, बट ज्यादातर मुझे मैं अगर कहूँ तो आप दो तीन लोगों ने जो विचार रखे हैं, इसका मतलब यह है कि टेलीविजन चैनल्स पे जो न्यूज आ रही है वो ठीक वैसी नहीं है जैसी आप लोग चाहते हैं, है? कितने लोग इस बात से सहमत हैं? लगभग करीब सभी लोग। हाँ? सर मीडिया एक्टिविज्म कम हो गया सर इसमें मैं हर चीज का मुद्दा राजनीतिक हो गया है। आप सब लोग एकदम ठीक कह रहे हैं और आपको इसलिए ये मेरी बात पे ताज्जुब भी हो रहा होगा कि मैं जो पिछले 40-42 साल से मीडिया में हूँ, 30 साल से टेलीविजन में हूँ, 10 नए चैनल लगा चुका हूँ और मैं आपकी बात पर सहमत हूँ जो इन दिनों टेलीविजन इंडस्ट्री कर रही है। क्यों कर रही है ऐसा? कभी सोचा है आपने? कोई दबाव है, प्रेशर है? एक करके कोई भी बताइए। सर हम पैसे कमाने का जरिया एक बन गया। सर प्रेशर है, पॉलिटिक्स। प्रेशर क्या है? अभी भी लेकिन कुछ लोग ऐसे कर रहे हैं जिसमें आलोचना होती है। बस बीजेपी के अगेंस्ट क्या खबर दिखाई, उसको एंटी नेशनल चैनल बोल दिया। सर लास्ट टाइम रिपब्लिक भारत जब गया था तो वहाँ पे एक अकबर गोस्वामी जी ने एक बात बोली थी कि वो तक चैनल वाले ये करते हैं। सर किसी को भी इतना सेंस है कि तक से कौन चैनल है, तो सर ये दिखाया जा रहा है कि हम सही, ये नहीं बोलूंगा कि इनकी पार्टी की उसमें सपोर्ट मिले ना मिले, मैं उसमें टिप्पणी नहीं करूंगा, बट ये भी किया जा रहा है कि अगले को डाउन करके हम अब जा रहे हैं। तो ये भी एक तरीके से भारत में देखो एक चैनल वाले दूसरे चैनल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। दूसरे पत्रकार को चुनाव में लगा हुआ है। ये अब आप लोगों ने तो अभी 5-7 साल में टेलीविजन देखने शुरू किए होंगे, लेकिन कभी सुना है अपने घरों में अपने पेरेंट्स से या कोई सीनियर फ्रेंड्स से कि पहले भी चैनल ऐसे ही थे क्या? है? कारण क्या है, कभी सोचा है आपने? जोर डालिए दिमाग पर, कोई वजह तो होगी, बताइए। सर इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि एक तो जो मनी आता है एडवर्टाइजमेंट से, उससे कंपनीज चल रही हैं, और इस टाइम पे अगर देखा जाए मीडिया का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ही यही है कि 30% उसमें न्यूज़ है, 70% एडवर्टाइजमेंट है। देखो कंपनियां तो पहले भी चलाती थी, पहले भी वो उनको मुनाफा कमाना होता था,
इस पे सर मैं एक अर्निंग चाहिए होती थी उनको। इस पे सर मैं पॉइंट ये ऐड करूंगा कि अभी रिसेंटली जब ये फ्लिपकार्ट और स्नैपडील्स की जब सेल आती है, आप न्यूज़पेपर खोल के देखोगे तो पहले के जो 7-8 पन्ने हैं वो नहीं एडवर्टाइजमेंट से भरे होते हैं, जबकि फर्स्ट पेज पे न्यूज़ होनी चाहिए। देखो इसके 2-3 कारण हैं। एक कारण तो आप जब सुनेंगे तो आप खुद उछल पड़ेंगे और आप लोग बहुत खुश हो जाएंगे। इसलिए कि मैं ब्रीफ में बताता हूं कि जब इस देश में टेलीविजन इंडस्ट्री आई करीब 14 साल पहले, पहला चैनल इस देश में जो इसी हिंदुस्तान की धरती से, भारत की धरती से, इंडिया की धरती से सैटेलाइट सिग्नल के जरिए अपलोड और डाउनलोड कर रहा था अपने सिग्नल्स को, तो 2001 में पहला चैनल आता है, 2005 में चैनल इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है और आज ये इंडस्ट्री 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा सालाना टर्नओवर की हो चुकी है। तो 5 वर्षों में जिस तरह से चैनल इंडस्ट्री खड़ी हुई, ये 2001 से लेकर 2005 के बीच तक। आपको पता है एक चैनल में कितने लोग लगते हैं एम्प्लॉयमेंट के लिए? एक चैनल में 500 लोग होते हैं काम करने वाले, 600 लोग होते हैं, और अगर किसी का बजट अच्छा है तो आप 700-800 भी कर सकते हैं। और जब इस देश में चैनल आए तो ये जिस तरह से आज आप लोग पढ़ रहे हैं, आज से 18-20 साल पहले मीडिया इंस्टीट्यूट्स नहीं थे। तो जब चैनल चलाना है तो कई बार ऐसे हुआ कि जो अनट्रेंड लोग थे उस समय, कई बार वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। जो अखबार बांटता था वो चैनल का मैं जाकर के एडिटर बन गया या रिपोर्टर बन गया। जो शादी ब्याह के फोटो या वीडियो निकालता था वो चैनल में जाकर के वीडियोग्राफर हो गया। तो जब अनट्रेंड लोगों के हाथ में इंडस्ट्री जाएगी तो उसका नुकसान होगा। एक तो कारण यह है, अब आप लोग जिस तादाद में आ रहे हैं, जिस संख्या में मीडिया इंस्टीट्यूट्स आ रहे हैं, पढ़ लिख करके आप जैसे आप आज हमसे बात कर रहे हैं, तो आप लोगों से मैं जिस तरह से डायलॉग कर रहा हूं, ये चीजें आज से 15, 17, 18 साल पहले नहीं थी। जब आप लोगों का बैच पहुंचेगा तब एक बार जो चैनलों की गाड़ी पटरी से उतरी है, जो आप लोगों ने कहा है, पहले चैनलों ने बहुत अच्छा किया। अब अच्छा क्यों किया? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। इस देश के पहले चैनल जब आया, जब मैं उस टीम का हिस्सा था, तो विदेशों से ट्रेनिंग के लिए उस चैनल के मैनेजमेंट ने बुलाया, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, और 2-3 महीने तक लगा था ट्रेनिंग में। लेकिन बाद में जो चैनल आए, किसी ने कोई ट्रेनिंग नहीं की। वो देखा देखी, हमारे यहाँ होता है ना, आप घरों में भी सुनते होंगे, अपने पेरेंट्स से ये बात सुनते होंगे कि हम देखा पड़ोसी का बेटा या बेटी ये हो गई है, तुम क्यों नहीं ट्राई करते? मेरे ख्याल से सुना होगा आप लोगों ने कहा। कई लोग ऐसे मिलते हैं मुझे जो ये कहते हैं कि देखो वो ये हो गया, तुमने क्यों ट्राई नहीं किया? हर इंसान का अपना नसीब भी होता है, अपना इंटरेस्ट भी होता है, अपनी दिलचस्पियां भी होती हैं और अपना टैलेंट भी होता है। तो जब ये लोग आए तो आज वो बहुत सीनियर लेवल पे हो गए। आप लोग जब जाएंगे तो ये चीजें उतर जाएंगी। दूसरी चीज है बाजार का दबाव, प्रेशर ऑफ मार्केट। जो खर्चे हैं हर साल बढ़ रहे हैं। चैनल 100 रुपए में अगर मान लीजिए किसी ने 100 रुपीज में कोई चैनल खोला है, तो अगले साल आप लोगों की सैलरी बढ़ानी है, बिजली का बिल बढ़ जाएगा, तेल पेट्रोल के दाम बढ़ जाएंगे, जो रिपोर्टिंग टीमें हैं उनके खर्चे बढ़ जाएंगे, कहीं बाहर भेजना है तो लॉजिंग बोर्डिंग बढ़ जाती है उनकी। तो और पहले एक चैनल था तो जो एडवर्टीजमेंट एड रेवेन्यू जो मिलता था वो एक रोटी होती थी एडवर्टीजमेंट की, लेकिन आज 1000 चैनल है। तो वो विज्ञापन एड रेवेन्यू के लिए मारामारी बढ़ गई है, वो भी एक कारण है। तीसरा कारण यह है कि टेलीविजन एक बहुत तेज हथियार वाला माध्यम है, मीडियम है। अखबार के लिए तो आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी है, हर घर में अखबार नहीं पहुंचता, अगर पहुंच भी जाए तो आपके पास टाइम कितना है पढ़ने के लिए। लेकिन टेलीविजन के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। आप
अनपढ़ आदमी भी टेलीविजन स्क्रीन पर देखकर ये अंदाजा लगा लेता है कि ये पक्षपात कर रहा है चैनल, ये न्यूज ठीक नहीं दे रहा है। तो ये बड़ी परीक्षा की घड़ी है कि आप लोग जब उस मैदान में जाएंगे तो आप सबको अपने ऑडियंस का ख्याल रखना पड़ेगा। पहले कुछ चैनल, अच्छे चैनल, अच्छी पत्रकारिता कर रहे थे, कुछ लोग मूल्यों के आधार पर, अपनी वैल्यूज के आधार पर, अपने एथिक्स के आधार पर पत्रकारिता करना चाहते थे। पोइट्री में आपका इंटरेस्ट है किसी का? कविता में? कई बार जर्नलिज्म कविता में भी होती है। सिस्टम को, जो सरकार जो चल रहा है सिस्टम इस देश में, उसको हिंदी में कहते हैं व्यवस्था। किस व्यवस्था में आप जी रहे हैं? तो टेलीविजन चैनल के लिए एक मेरे दोस्त हैं, उन्होंने एक अच्छी कविता लिखी है कि है व्यवस्था से बहुत गुस्सा भी हो, पत्रकारों के लिए खास तौर पर, आप लोगों को भी ज्यादा ध्यान रखिएगा, है व्यवस्था से बहुत गुस्सा भी हो और कर लेता है समझौता भी। जो आप बात कर रहे थे ना, और कर लेता है समझौता भी। जिंदगी की दौड़ में भी है शरीक और कई मोड़ों पे है ठहरा भी हो। हम सब के साथ ये होता है जिंदगी में। कई बार हम तय नहीं कर पाते, ठिठक जाते हैं, भागना भी चाहते हैं जिंदगी में, लेकिन प्रॉब्लम्स आती हैं, कई तरह की बाधाएं आती हैं। तो मीडिया के साथ भी यही है व्यवस्था से बहुत गुस्सा भी हो और कर लेता है समझौता भी हो। जिंदगी की दौड़ में भी है शरीक और कई मोड़ों पे है ठहरा भी हो। गैर तो लगता नहीं वो आज भी, गैर मतलब पराया। गैर तो लगता नहीं वो आज भी, हाँ मगर लगता नहीं अपना भी। तो मीडिया के साथ ऐसे हो गए। हमने अपनी जिम्मेदारियां समझनी उस तरीके से, उस सेंसिटिव नजरिए से हमने कम कर दी। अब 2019 के चुनाव की बात मैं करता हूं। अब जो बहस देश में चल रही है इस चुनाव में, मीडिया का रोल इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जो रियल इश्यूज हैं वो भी लोगों के सामने आएंगे। और आप लोग कृपया पढ़ना शुरू कर दीजिए। कितने लोग हैं जो रोज हर हफ्ते कोई ना कोई किताब पढ़ते हैं करंट अफेयर्स पे। एक किताब, मेरा आग्रह आपसे यह है कि आप एक किताब जरूर पढ़िए हर हफ्ते। आप पढ़ेंगे तो किताब से बड़ा गुरु कोई दूसरा नहीं होता। यहां से आप एक सिस्टम सीख कर जाएंगे इस इंस्टीट्यूट से, लेकिन किताब आपको जीवन की दिशा तय करने में बहुत मदद करेगी, बशर्ते आप उस तरह की किताबें पढ़ें। चुनाव में एक पत्रकार की, एक जर्नलिस्ट की एक जिम्मेदार जो भूमिका होती है वो यही है कि जो यज्ञ हो रहा है उस यज्ञ में अपने तरीके से अपनी आहुति दे। आज हो क्या गया है, नेता को लेकर भी इसी तरह बात होती है। लीडरशिप क्राइसिस बहुत हो गई है। एक जमाने में देखिए, जैसे ही हम लोग बात करते हैं कि राष्ट्रपिता जब बात करते हैं तो आपके दिमाग में एक इमेज बन गई है। मैंने नाम किसी का नहीं लिया, एक लीडर था जिसको राष्ट्रपिता कहते हैं, आपके दिमाग में एक इमेज बन गई है। नेताजी मैं कहता हूं, एक इमेज आपके दिमाग में आ गई। सरदार मैं कहता हूं तो आपके दिमाग में एक इमेज है। आज से 70-80 साल पहले ना कम्युनिकेशन के साधन इतने तेज थे, लेकिन उन्होंने सोसाइटी के लिए जो किया आज हम उनको नहीं भूल पा रहे। तो ये क्राइसिस आज की पॉलिटिक्स में है, आज के सिस्टम में है। और इस सिस्टम में अगर ये क्राइसिस है तो आप लोगों की जिम्मेदारी जब आप जाएंगे तो और बढ़ जाएगी। आज जो लीडरशिप में एक बात कहूंगा फिर अपनी बात खत्म करूंगा, वो मुझको हुक्म देता है सिपाही सालार जो ठहरा। सिपाही सालार समझते हैं, कमांडर। वो मुझको हुक्म देता है सिपाही सालार जो ठहरा, और मैं उसकी जंग लड़ता हूं, मैं बस हथियार जो ठहरा। मैं उसकी जंग लड़ता हूं, मैं बस हथियार जो ठहरा। उसे हर शख्स को
अपना बनाना खूब आता है, मगर वो खुद किसी का नहीं, होशियार जो ठहरा। तो मेरा ख्याल है बातचीत तो लंबी चलती रहेगी, लेकिन मैंने देखा इसमें कि कुछ आप लोगों से डायलॉग और बातचीत का भी कुछ वक्त है, तो अगर आप लोगों के कुछ, वैसे तो सवाल जवाब होते रहे हैं बीच में, लेकिन अगर कुछ हो तो सवाल आप पूछ सकते हैं। बोलिए। जैसा कि आपने भी लेक्चर में बोला कि मीडिया के पास इतना पावर है कि वो किसी नेता का नाम बदल नहीं सकता है, तो सर वो तो ठीक है, पर उसके कॉन्सिक्वेंसेस सर बात जानकारी बनाती है। मैं समझा नहीं। जैसा कि आपने कहा कि जो मीडिया पर्सन है, जो मीडिया है, उसमें इतनी पावर होती है कि वो किसी नेता के कान पकड़ नहीं सकता, उसको बता नहीं सकता कि क्या गलत क्या नहीं। कान पकड़ने से मतलब मेरा ये नहीं कि आप सड़क पर जा रहा हो उसके कान वाकई पकड़ लें। कान पकड़ने से मतलब ये है कि आपको आलोचना का अधिकार है कि श्रीमान आप गलत कर रहे हैं और हो रहा है। कभी थोड़ा सा ऐसा लगता है, एक निराशा होती है, लेकिन वो फेज है, टेम्परेरी फेज है, एक डेमोक्रेसी में दूर हो जाता है। सर जैसे कि एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, जैसे 2003 या 2003 और 4 की बात है। सर एक जर्नलिस्ट थे बिहार में रंजन नाम से, सर एक और एक लोकल पॉलिटिशियन थे साहिब नाम से। सर उन्होंने भी ऐसी रिपोर्ट लिखी थी, लेकिन एंड में उनकी डेथ हुई। तो सर उस कॉन्सिक्वेंसेस का क्या? सर वो तो इस वक्त काम कर रहे थे। मैं आपको बताता हूँ, हमारी डेमोक्रेसी, मैं ये नहीं कहता कि 100% अभी मैच्योर है। हम जैसे उम्र में बचपन होता है, फिर टीनेज आता है, फिर जवान होते हैं, फिर बूढ़े होते हैं, इसी तरह से 100 करोड़ की आबादी वाले देश में डेमोक्रेसी जिस तरह से बढ़ती है, उस पर टाइम लगता है। अमेरिका से फर्क हमारा ये कि अमेरिका में देखिए 100% साक्षरता है, लिटरेट हैं। जो लीडर है वहां का, वो जानता है कि उसको अपने मतदाताओं के लिए, वोटर्स के लिए क्या करना है। हमारी संसद में कई बार आप देखते होंगे ये आता है आंकड़ा कि इतने लोग हैं जो कभी भी स्कूल नहीं गए निर्वाचन के बाद, प्राइमरी भी पास नहीं है, ग्रेजुएशन भी नहीं किया। एक जमाना था जब ये भी हो, एक कॉलम होता था कि एकदम अनपढ़ है। अब धीरे धीरे वो ग्राफ कम होता है। कई बार लोकल इंटरेस्ट ऐसे होते हैं जो जर्नलिस्ट उनका विरोध करते हैं, तो ये चैलेंज उनको, ये खतरा उनको उठाना पड़ता है। इस देश में आजादी के बाद से कई अवसर ऐसे आए जब नेताओं की पोल खोलने का काम भी मीडिया ने किया है और बड़ी मजबूती के साथ किया है। तो ये एक प्रोफेशनल कुछ चुनौतियां होती हैं सिस्टम की, जिनका हमको पालन करना होता है। सर किसी भी, जैसे अगर मैं बात करूं अभी महिला सुरक्षा की, तो हर किसी को पता है कि महिलाओं की सुरक्षा की बात होनी है। अगर कोई पार्टी लाती है कि लाइट एक मुद्दा बना दी, उसे महिला सुरक्षा से जोड़ दी, तो एक मीडिया में न्यूज हो गया। वरना ऐसे बारे में बात क्यों नहीं होती है? जैसे महिला सुरक्षा सबको पता है, लेकिन बहुत कम बात होती है। अभी हाल फिलहाल अगर आप एनडीटीवी का एक न्यूज देखें, तो लाइट से उसे जोड़ दिया गया था, वो एक बड़ी न्यूज बन गई। तो ऐसे न्यूज को क्यों लाया जा रहा है, जबकि हमारे पास डायरेक्ट भी कुछ न्यूज़ों को प्रस्तुत कर सकते हैं मार्केट। एक बार जरा फिर से दोहराइए जरा। मेरा कहना ये है कि महिला सुरक्षा हर किसी को पता है कि जरूरी है, लेकिन अगर लाइट को महिला सुरक्षा के साथ जोड़ देते हैं तो एक न्यूज बन जाती है, और महिला सुरक्षा से बस एक न्यूज नहीं आता। मैं लास्ट टाइम एनडीटीवी में एक न्यूज देखा था जिसमें बहुत जगह लाइट लगाने की बात हुई, तो कैमरे, तो महिला सुरक्षा को उसके साथ जोड़ दिया गया, लेकिन उसके पहले कोई महिला सुरक्षा की बात नहीं हुई। तो ऐसा क्यों? मैं जितना मैं आपकी बात समझ पा रहा हूँ उसका मैं तो सिर्फ ये कहूँगा कि देखिए, एक जमाने में हमने कहाँ से लिटरेसी परसेंट से आज़ादी 47 से शुरू किया था। हमारा लिटरेसी परसेंट 40%, 85% लोग निरक्षर थे, 85%। आज करीब करीब 80% लोग साक्षर हैं, पढ़े लिखे हैं। तो उस जमाने में जो हमारा ट्रेडिशनल समाज था, आपने देखा होगा कि आपकी दादी नानियां भी पढ़ी लिखी नहीं होती थी, है ना, उनको घरों के बाहर नहीं निकलने को मिलता था। सती प्रथा हम लोगों ने अपने जब कैरियर के
टाइम पे कई बार मैंने कुछ सती होने की घटनाएं कवर की हैं, लेकिन जैसे जैसे हिंदुस्तान आगे जा रहा है ये सारी चीजें महिलाओं के सम्मान के साथ, अब देखिए कल भी मैं एक आज ही शायद किसी अखबार में पढ़ रहा था कि किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ये तय किया है कि वो 40% से भी ज्यादा महिलाओं को सीटें देगी। तो महिलाओं की जो अवेयरनेस है वो बढ़ रही है, अधिकार बढ़ रहे हैं। अब आप बांट के नहीं देख सकते, एटलीस्ट मैं तो नहीं, मेरा तो अनुभव ये है कि चैनलों में मैंने जितनी लड़कियों को नौकरी दी है उन लोगों ने लड़कों से बेहतर काम किया है। लड़कों से मैं बच्चों से कुछ उसको बुरा मानने की बात नहीं है, लेकिन वो मुझे लगता है कि वो ज्यादा ऑनेस्ट होती हैं, टाइम पे काम पूरा करती हैं और सीधे काम पर नजर रखती हैं, टाइम पर आती हैं, टाइम पर जाती हैं। कम समय ऐसा होता है कि जब उनको कोई मुश्किल आ जाए तभी वो छुट्टी लेती हैं। तो मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ कि वो ये हिंदुस्तान अब करवट ले चुका है। मुझे लगता है कि अब शायद इस तरह की बात, सुरक्षा की बात उस तरह से, तो अफवाह, एक्सेप्शन इज ऑलवेज, हर जगह अपवाद होते हैं, तो कुछ तो हर जगह चलता ही रहेगा। चीन में भी आप पढ़ लीजिए, यूएस में भी पढ़ लीजिए, यूरोप में पढ़ लीजिए, घटनाएं आती हैं सब, लेकिन उससे बहुत कोई डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं। ठीक है सर, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि आपने 8 साल राज्यसभा टीवी में काम किया, इसके बाद आपको रिजाइन देना पड़ा। तो ऐसी क्या परिस्थिति आई थी कि जिसके कारण आपको ये स्टेटमेंट देना पड़ा कि 100% निष्पक्षता नाम की कोई चीज नहीं होती है? सर प्लीज हमें भी बताइए। देखो, आज भी मैं वही कहता हूं कि 100% निष्पक्षता नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन निष्पक्षता का मतलब ये नहीं होता कि जो आप काम कर रहे हैं उसमें 100% दिया जाता। आपकी अपना पक्ष भी तो होता है, आपकी अपनी लाइकिंग भी होती है। आप एक खबर आ रही है और इस खबर को हेडलाइन कैसे बनाना चाहते हो, आपका जो पक्ष है, आपके अपने अंदर का पक्ष है, वो उस निष्पक्षता पर भी हावी होता है। तो 100% निष्पक्षता की बात मैं इसलिए करता हूं। एक दूसरा ये कि दुनिया में पूरे भारत ही नहीं, वर्ल्ड में आप कहीं भी चले जाइए, आप देखेंगे कि ऐसा कोई अखबार नहीं है जिसका कोई मैनेजमेंट ना हो, ऐसा कोई चैनल नहीं है जिसका कोई मालिक ना हो। और जब मालिक है और मैनेजमेंट है तो कोई मैनेजमेंट या कोई मालिक मंदिर की तरह चैनल तो नहीं खोलता है, अखबार नहीं चलाता है कि मंदिर में जाके दर्शन कराओ। धर्मशाला नहीं खोली हुई है उसने, उसके अपने इंटरेस्ट भी होते हैं, उसके इंटरेस्ट। अब एक जमाने में ऐसे होता था कि जब हम लोगों ने प्रिंट मीडिया के साथ शुरुआत की थी, उस समय अखबारों के जो मालिक होते थे, चैनलों के जो जब मैनेजमेंट होते थे, वो कहीं ज्यादा आजादी देते थे क्योंकि इस तरह से बाजार का कंपटीशन नहीं था। लेकिन अब थोड़ा सा स्थितियां बदली हैं, तो मैं स्वीकार करता हूं कि बाजार का दबाव, इसलिए तो मैंने कहा ना कि गैर तो लगता नहीं वो आज भी, हाँ मगर लगता नहीं अपना भी वो। मैं इससे सहमत नहीं हूं भाई। अब कोई चीज पर्दे पर अगर परोसी जा रही है और वो अगर गलत है तो आदमी सही और गलत का फर्क करना कैसे सीखेगा? टेलीविजन बंद कर देंगे तो कोई मतलब नहीं है उसका। हाँ ठीक है, लेकिन अगर अखबार गलत छापने लग रहे हैं, रात दिन अपराध की, क्राइम की, बलात्कार की खबरें डकैती की खबरें छापने लग जाए तो आप अखबार पढ़ना बंद कर देंगे। You said that जैसे उसने कहा महिला सुरक्षा, women security, you said that exceptions are always there. But if we read the report, international report, that India is the most dangerous country for women. Alright, so I cannot think this as an exception, because if we are living in a country where women are most, unsecure, then we should at least talk about those perspectives. But we are talking about is Rahul Gandhi a Brahmin or not? Should we eat beef or not? And should we stand on national anthems or not? I mean, if these are the kinds of debates if we are watching on 9 PM at television, and the situation is that we are living in a country which is more volatile for women, and also we are standing at 138 on media freedom. That is below Afghanistan, which is below Afghanistan. So shouldn't we talk about issues which really have more, weight, rather than thinking which kind of gotra Rahul Gandhi has or why Yogi Adityanath cannot grow his hair? गुड ऑब्जर्वेशन। आई कैन से आपके क्वेश्चंस में आपका उत्तर भी है, आपने आखिर में अपने सवालों का उत्तर भी दिया है। मुझे अच्छा लगा है, आई लाइक इट। यही इस प्रोफेशन की जो अच्छी बात है, आप ये तय कर पा रहे हैं
क्यों टेलीविजन देखना बंद क्यों करें? इसलिए कि जो इस तरह का आप अच्छे और खराब का फर्क कैसे करेंगे? अगेन आई एम रिपीटिंग इट। लेकिन आप ये तय कर पाते हैं कि मिस्टर ए बाजार में ये शैम्पू बहुत अच्छा है, बी शैम्पू आप नहीं खरीदते हैं, मॉल में जाते हैं तो ये सी एंटी डैंड्रफ है, ये सूखे बालों के लिए है, ये चमकीले बालों के लिए है। नहीं, ये अनफॉर्चुनेट है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि अगर चैनल्स जो है बायस हैं और किसी पार्टी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें हैं, मुझे लगता है एक टेम्परेरी फेज है। सो आई एम वॉचिंग, देख तो रहा हूँ मैं मतलब 25-30 साल से, थोड़ा बहुत ऐसा होता है, लेकिन इससे बहुत डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है मेरा ख्याल है। और इस पर मेरा ख्याल एकदम ये अलग टॉपिक है आज के, तो हम कभी नेक्स्ट टाइम जो होगा तो इस पर हम इत्मीनान से लंबी बात करेंगे, क्योंकि ये सवाल जवाब में आने वाली चीज़ नहीं है, ये समझने वाली चीज़ है। ठीक है, थैंक यू। लास्ट गंगा नदी को गंदा करने के दुष्परिणाम नहीं पता थे, गंगा नदी को गंदा किया। आज लाखों करोड़ों के बजट निकाले जाते हैं उसे साफ करने के लिए, मगर नहीं हो पा रही है। आपने कहा जिस तरीके से आज टेलीविजन इंडस्ट्री गंदी हो रही है, जब हमारा बैच आएगा, हम जर्नलिस्ट बनेंगे तो इसको साफ कर पाएंगे। सर, क्या आपको लगता है कि जब हम उस स्टेज पे होंगे तो हमारे लिए ये करना बहुत आसान होगा? जब पुण्य प्रसून वाजपेयी और अभिसार जैसे महान जर्नलिस्टों के साथ ये हो सकता है, तो सर हमारे लिए कितना बड़ा डिफिकल्ट टास्क हो सकता है ये कि इस इंडस्ट्री को सही तरीके से बहुत ही आइडियल प्लेटफॉर्म मिलेगा। और मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं ये कहूंगा कि देखिए, पत्रकार होने के नाते, एक एंकर होने के नाते, एक जर्नलिस्ट होने के नाते, जो स्क्रीन के सामने बैठा हुआ दर्शक है, व्यूअर है, वो आपसे एक बैलेंस रिपोर्टिंग की, बैलेंस एनालिसिस की उम्मीद करता है। लेकिन जब आप भी एजेंडा चलाते हैं तो वो एजेंडा दर्शक नहीं पसंद करता। आप देखेंगे कि कई लोग हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जब वो एजेंडा जर्नलिज्म करते हैं कि एक पक्ष को लेते हैं, दूसरे पक्ष को नहीं लेते हैं, तो उनके साथ ये मुश्किल होती है। आप एक तरफ बात करेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। आपको दोनों पक्षों को संतुलित रख, मेरा तो उसूल संतुलन का रहा है, और मैंने कहा ना, मैंने बहुत ही तीखी और धारदार पत्रकारिता की है। आज तक चैनल का मैं संपादक रहा हूँ, राज्यसभा टीवी में भी उतना तीखा मैंने अपना कार्यक्रम दिखाए हैं जितना उम्मीद नहीं कोई प्राइवेट चैनल्स नहीं दिखाते थे। लेकिन तब जब आपकी नजर, नियत और मंशा साफ होती है, अगर आप बायस्ड हैं, दिल से बायस्ड हैं, तो आपको आपकी आलोचना होगी। सर, मैं एक बार अपने डायरेक्टर सर के ऑफिस में गया था, तो उन्होंने मुझसे पूछा क्या बनना चाहते हो? मैंने कहा सर न्यूज़ एंकर। तो उन्होंने बड़ा सा एक छोटा सा सवाल किया था कि क्या आपको लगता है जो लोग 20 साल से इस इंडस्ट्री में एक जगह बना के बैठे हैं, उन्हें आप रिप्लेस कर पाओगे? तो सर ये तो प्रकृति में का नियम है, चेंज चेंज तो होगा। मैं कब तक मैं बैठा रहूंगा? सर, हम भी देख रहे हैं कि कितने नए न्यूज एंकर्स को जगह मिलती है इंडस्ट्री। मिलेगी। लेकिन ये है कि आप लोगों की जनरेशन के साथ थोड़ा सा मुश्किल ये है कि बहुत जल्दी पा लेना चाहते हैं। ये इसके लिए बहुत खपना पड़ता है, मरना पड़ता है, बहुत मेहनत करना पड़ती है बेटा। तो आप इसके लिए थोड़ा सा तैयारी करिए। आपको निश्चित रूप से इस फील्ड में ये भी है कि जिसको जहां जाना है वो जाके रहेगा, कोई रोक नहीं सकता आपको, है ना? थैंक यू।